Months after the parliament has passed three new farm laws, a section of the farmers there continue to be on warpath. High drama has unfolded at the Patiala-Ambala highway as farmers force their way into Haryana despite the borders being sealed. Hundreds of farmers carrying sticks through barricades put up at the Patiala-Ambala highway into rivers as they continued their Delhi Chalo march. Tear gas, shells and water cannons were used to push back farmers. In fact, the farmers retaliated by pelting stones at the Haryana cops. Farmers have now gathered near the Karnal Lake to proceed with their Delhi Chalo agitation. Haryana has now sealed borders with Punjab today and tomorrow. Delhi government too has refused to allow any rally within the city. Delhi's borders at Gurugram, Faridabad have been sealed and metro services have been affected. But rising, in fact, here now raising his voice in the favor of farmers, Chief Minister of Delhi, Arvind Kejriwal, has said peaceful demonstrations should be allowed. Chief Minister Kejriwal further called the farmers' legislation as anti-farmers. 30 Punjab farmers' unions have called for a bandh today and tomorrow as part of the agitation against the centre's contentious farm laws. Here you're looking at visuals here where farmers there completely agitated, wanting their voice to be heard, undeterred by the water cannons, the lathi charge, the pushback by the police. They're in fact coming hard with large numbers, coming hard on the police, coming heavy on the security forces who are currently placed along the border areas there. Many of the highways leading to Delhi, about 5 highways which the farmers have zeroed in on. Many of them have already entered the national capital. Thousands of them are still stranded at the border areas. They're not being allowed, but they're pushing back. Let's cut across to Satyendra Chauhan joining us, reporting live from Shambhu border, Patiala-Ambala highway. Satyendra, आप अभी क्या सिचुएशन है वहाँ पर, हाल कैसा है, लोग काम हुए क्या नहीं और उनका डिमांड क्या है? जब तक पुलिस छोड़ेंगे उनको वहीं पर बैठेंगे क्या? देखिए, मैं आपको पहले तस्वीरें दिखाता हूँ। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जो है किसान हरियाणा में घुस गए हैं और हजारों की तादाद में ये आगे बढ़ रहे हैं। जो इनका ट्रैक्टरों का और जो व्हीकल का काफिला था वो आगे जा चुका है और जो हरियाणा पुलिस ने तैयारियां की हुई थी, रैपिड एक्शन फोर्स और जो बुलाई हुई थी, वो कहीं ना कहीं धरी की धरी रह गई और अब ये किसान जो है हजारों की तादाद में दिल्ली की तरफ जो है कूच कर गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रैक्टर्स है, इन ट्रैक्टर्स के अंदर पीछे ट्रॉलियां बनी हुई है। इन ट्रॉलियों में पूरे टेम्परेरी हाउस बनाए हुए हैं, यानी कि जरूर को प्रोटेस्ट करना पड़े तो ये अपना पूरा आटा, दाल, हर सामान जो है रॉ मटेरियल लेकर आए हैं ताकि किसी भी सूरत में अगर ये स्ट्रगल लंबा चलता है तो ये किसान इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो कुल मिलाकर जो हालात हैं, जो रस्साकसी थी पुलिस और किसानों के बीच, वो अब खत्म हो गई है और अब ये किसान दिल्ली की तरफ रवाना हो गए हैं। हो सकता है कि आगे इनको फिर रोकने की कोशिश की जाए, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस ने टीयर गैस, वाटर कैनन, हर चीज इस्तेमाल करके देखी और इनको कंट्रोल नहीं कर पाई, तो उससे लग रहा है कि आगे भी ये हालात कहीं ना कहीं बिगड़ सकते हैं। लवीना, सत्येंद्र, यहाँ पर जो दिख रहा है बहुत सारे लोग बॉर्डर पे फंसे हुए हैं, मगर बहुत सारे लोग बॉर्डर के अंदर बॉर्डर पास भी कर चुके हैं। ये जो एजिटेशन है प्री प्लान था, 26 को होगा ही होगा, फार्मर्स यूनियन ने डिक्लेयर किया था, फिर भी ये ऐसे दिखता है कि बहुत सारे फार्मर्स 2 दिन से बहुत सारे लोग आ चुके हैं। यही इंफॉर्मेशन मिला है हमें, क्या ये सही है? पानी खत्म हो चुका है, जो वाटर कैनन इस्तेमाल किया जा रहा था, फायर ब्रिगेड। All right, we're going to try and patch Satyendra back again. Our reporters there are live right at the spot, overseeing this entire protest. Of course, not allowed to go anywhere close to the agitating farmers there. They've been blocked off. The farmers who have come in trucks, trolleys, tractors, any possible means of transport, many of them walking. It seems like many farmers have already crossed the border areas over the last 2 days. This is what we have got source-based information coming in that several farmers have already passed the border areas and they're already in the national capital. But of course, thousands of more who are still stranded. Now, let's take a look at our ground reports from Patiala-Ambala border, where farmers clashed with the Haryana cops. Here's what they found.
किसान एक बार मैं आपको ये समझाता हूं कि ये जो हाईवे है ये दिल्ली, अंबाला, पटियाला, लुधियाना, जालंधर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर को जोड़ता है। और इस हाईवे पर जहां पर भी मेरे कैमरे की नजर जा रही है, देखिए कि किसान ही दिखाई दे रहे हैं। किसान के जो ट्रैक्टर्स हैं उनका काफिला यहाँ पर नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर सिचुएशन जो है जिसको संभालने की कोशिश की जा रही थी वो यहाँ पर अब बिगड़ती जा रही है। और ये किसान अब पंजाब से हरियाणा में दाखिल हो चुके हैं और जो वाटर कैनन और टीयर गैस की मशीनें हैं वो कहीं ना कहीं बेबस नजर आ रही हैं कि बस अब ये इनका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। तो कुल मिलाकर जो हालात थे वो यहाँ पर चिंताजनक बने हुए हैं, डर लग रहा है। और ये देखिए अभी यहाँ पर जो है पथराव किया गया था। ये देखिए ईंट और ये पत्थर, ये जहाँ पर मीडिया कर्मी है वहां पर भी पथराव किया गया। तो हमने भी बड़े डर और संभल कर ये रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं क्योंकि हालात यहाँ पर बहुत अच्छे नहीं है। अभी भी हालात जैसे पहले थे वैसे ही बने हुए हैं और जो किसान है वो पंजाब से हरियाणा के अंदर दाखिल हो चुके हैं। यहाँ पर ये तस्वीरें देखिए। और सबसे बड़ी डर की बात ये है कि ये जो किसान है जिस जगह पर खड़े हुए हैं ये पुल है और इस पुल से तकरीबन 100 फीट नीचे नदी है। अगर यहाँ पर भगदड़ मच जाती है या कुछ हालात ऐसे बनते हैं जिसमें पुलिस ने अभी बल प्रयोग किया था, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, टीयर गैस छोड़े गए, तो अगर ये भगदड़ मच जाती है तो ये किसान कहीं इस नदी के अंदर ना गिर जाए। अगर पुलिसकर्मी भी गिरते हैं या किसान भी गिरते हैं तो ये एक कहीं ना कहीं जो डर की बात है। रही बात जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पुल जहां तक भी है तकरीबन आधा किलोमीटर का ये एरिया है और इस आधा किलोमीटर में पूरे में किसान और उनका जत्था, उनका काफिला ट्रैक्टरों का दिखाई दे रहा है। पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, उस बैरिकेडिंग को उठाकर नदी में फेंक दिया गया। पुलिस ने वाटर कैनन इस्तेमाल किया, पानी खत्म हो गया, टीयर गैस छोड़े, किसानों ने पथराव शुरू कर दिया। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूं यहाँ पर भी रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने मोर्चा संभाला, लेकिन किसानों के पथराव के आगे वो भी यहाँ पर नहीं टिक पाए। पुलिस ने ये ट्रक्स लगाए थे और इन ट्रक्स के ऊपर भी किसानों का हुजूम, किसानों का झुंड आप देख सकते हैं। इन किसानों ने जो है इन ट्रकों पर भी कब्जा ले लिया है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। हालांकि इनको पुलिस यहां तक इन ट्रक्स के माध्यम से रोकने में कामयाब हो रही है। पुलिस अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई है, रैपिड एक्शन फोर्स को भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो भी हालात को संभाल नहीं पाए। तो कुल मिलाकर ये जो यहाँ का माहौल है वो पूरी तरीके से तनावपूर्ण एवं चिंताजनक बना हुआ है। We're cutting across to Sanjay joining us, reporting from the Delhi-Gurgaon border, bringing us the live visuals from what we see right there. Let's take a listen, tossing right across to Sanjay. Well, we're going to try. Sanjay is joining us there from the Delhi-Gurugram border. Remember, this is also one of the highways there where farmers are already, they've reached in large numbers, thousands of them wanting to push their way into Delhi. Remember time and again that they've approached the government for permission for the agitation. That has been struck down. Considering the pandemic, they've not got permission neither from the Delhi government, neither from the Haryana government. They've not been encouraged really to carry out this mass agitation in the mid of the pandemic. But this is visual insights that we see of the farmers who are frustrated. They want their demands met. They have about 5 demands and they want to secure their business, their agricultural future, their families' future. Of course, many of these farmers, they're into agriculture for decades. In fact, this is their livelihood and that's what they want to secure. Amid the pandemic, they're not really worried about what the protocols are. They're carrying out this agitation despite all the restrictions in place. So this shows the frustration that the farmers feel right this minute. All right, let's cut across to Satyendra joining us, giving us a glimpse into what's happening right there. Let's take a look. पुलिस ने प्लान बी के तहत इन ट्रक्स को बीच हाईवे में रोक दिया था कि किसान अपने वाहनों को, ट्रक्स को लेकर आगे ना निकल सके। लेकिन अब ये किसान इन ट्रक्स के ऊपर आ गए हैं और कई ट्रक्स इन्होंने स्टार्ट भी कर लिए हैं तार जोड़कर और ये धक्के मार रहे हैं। देखिए, ये देखिए, ये जो एक बड़ी गंभीर सिचुएशन है कि कहीं ये ट्रक आगे खड्डे में ना गिर जाए, क्योंकि ये नदी है
नदी का पुल है और जिस तरीके से किसान अब जबरदस्ती आगे बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं परेशानी अब आगे हो सकती है। जिस तरीके से ये किसान उग्र होते जा रहे हैं, रैपिड एक्शन फोर्स देखिए किस तरीके से पीछे खड़ी हुई है। जो पुलिस बल है वो लगातार पीछे हटता जा रहा है। तकरीबन 1 किलोमीटर ये पीछे बैरिकेडिंग थी, उस बैरिकेडिंग को हटाकर पीछे फेंक दिया है और किसान अब आगे बढ़ रहे हैं दिल्ली की तरफ। हरियाणा में घुस चुके हैं। वो रोड रोलर देखिए आप, उस रोड रोलर पर किसान चढ़ गए हैं, उस रोड रोलर को हटा रहे हैं। अगर ये ट्रैक्टर्स और ये बैरिकेडिंग जो बनी हुई है ट्रक्स की, इन्हें किसानों ने हटा दिया तो दिल्ली के लिए ये बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि दिल्ली पहले ही कोरोना की मार झेल रही है और हजारों की तादाद में ये किसान दिल्ली आते हैं तो दिल्ली के लिए हालात बिल्कुल गंभीर हो सकते हैं। अब ये किसान, ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं कि अपनी मनमानी अब करने लगे हैं। पुलिस साइड हो गई है, आरएएफ साइड में हो गई है और जो ट्रक्स और वाहन पुलिस ने प्लान बी के तहत यहाँ पर लगाए थे उनको धकेला जा रहा है। ये किसान ट्रैक्टर लेकर आ गए। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये किसान अब ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ मार्च करना शुरू कर दिए हैं। तो और पीछे से जो काफिला था वो अब आगे बढ़ने लगा है। Now we are cutting across to Sanjay Sharma joining us live from the Delhi Gurugram border. संजय जी, वहाँ पर जो एजिटेशन है अभी भी चल रहा है। फार्मर्स जो है वहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? परमिशन नहीं मिला है दिल्ली के अंदर आने के लिए, क्या वो वहीं बैठे रहेंगे? गुड़गांव बॉर्डर पर हम मौजूद हैं, लेकिन यहाँ अभी तक किसानों के जत्थे नहीं आए हैं। लेकिन यहाँ हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ के जवान, ये सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पर टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा पर वो तैनात हैं। हर एक बस की, हर एक ट्रक की दे आर चेकिंग थॉरोली एवरी बस एंड एवरी व्हीकल। सो कोई किसान यहाँ से चला ना जाए, यहाँ से किसान, आंदोलनकारी किसान दिल्ली में दाखिल ना हो जाएं। फिलहाल उम्मीद की जा रही है कि जो सिंघू बॉर्डर है दिल्ली और हरियाणा का, वहां से सोनीपत, वहां से लोग किसान अंदर आ सकते हैं, क्योंकि जिस रास्ते से वो अंदर दाखिल हुए हैं वहां से धीरे धीरे करके शाम तक वो यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ इंतजार है अभी। हरियाणा पुलिस के जवान यहाँ तैनात हैं, ट्रैफिक में जगह जगह बसों में झांक कर देख रहे हैं कि आखिर किसी बस में ऐसा तो नहीं कि किसान चुपचाप पहुंच जाएं और दिल्ली में हंगामा बरपा दें। फिलहाल हरियाणा में जहां हम खड़े हैं वहां 144 सेक्शन लगा दी गई है और यहाँ 5 से ज्यादा लोगों को एक साथ किसी भी तरह के हथियार, लाठियां, इन तरह की चीजों के साथ लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा। लेकिन किसान नेताओं से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि दिन का काम निपटाकर अपने खेतों का कुछ बचा काम हो या पशुओं को चारा देना हो अपने जानवरों को, तो वो सारा कुछ करके वो दोपहर को 12 बजे के बाद वहां से अपने अपने घरों से रवाना होते हैं और उम्मीद कर रहे हैं हो सकता है कि 2-2:30 बजे तक यहाँ किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉले आना शुरू हो जाएं। लेकिन बड़ी बात यह है कि गांव से लेकर यहाँ तक आने में कम से कम 25 चौकियां पड़ेंगी। पुलिस का पहरा जगह जगह है, जगह जगह बैरिकेडिंग लगी है। तो ऐसे में किसानों के लिए दिल्ली तक पहुंचना बड़ी चुनौती तो होगा। Bilkul, Sanjay, thank you very much for joining us. But nonetheless, like we did hear, several farmers have already made their way into Delhi, but so far thousands of them still